بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کو نالج میں خوش آمدید۔ سوال خواب میں پانی دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب خواب میں صاف پانی دیکھنا رزق، علم یا خوشحالی کی علامت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی دین کی علامت ہے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی انسانی جسم کے قابل استعمال ہے؟ جواب انسانی آنکھ، گردہ اور دل جیسے اعضاء مرنے کے بعد بھی عطیہ کیے جا سکتے ہیں بشرطِ ضرورت۔ اسلام نے انسانی جان بچانے کے لیے اعضاء کی پیوند کاری کی اجازت دی ہے۔ بتائیے کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ سورۃ الصبا آیت نمبر 10۔ سوال ہاتھ میں کڑے اور دھاگے باندھنے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب ہاتھ میں کڑا یا دھاگا باندھنا شرعی لحاظ سے جائز نہیں، اس سے کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی۔ جس نے تعویذ یا دھاگا باندھا وہ شرک کر بیٹھا۔ سوال قرآن پاک میں موت کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب قرآن پاک میں موت کا ذکر تقریباً 70 بار آیا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185۔ سوال دنیا کو قیامت کے روز کس شکل میں لایا جائے گا؟ جواب قیامت کے دن زمین کو مختلف شکل میں بدلا جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 48۔ سوال بچے کا عقیقہ نہ کرنے سے والدین کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب عقیقہ سنت موقدہ ہے، نہ کرنے سے ثواب سے محرومی ہے، گناہ نہیں۔ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے۔ سوال کس نبی کا ہاتھ چمکتا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ معجزے کے طور پر چمکتا تھا اور اپنا ہاتھ نکال وہ سفید نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 22۔ سوال قرآن پاک میں خیرات کا حکم کتنی بار آیا ہے؟ جواب قرآن پاک میں خیرات اور صدقہ کا ذکر 150 سے زائد بار آیا ہے۔ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254۔ سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کے ازواج قتلہ بنت عبد العزیٰ، رومان، اسماء بنت امیس، حبیبہ بنت خارجہ تھی۔ سوال نماز کے دوران برے خیالات کس چیز کی علامت ہے؟ جواب نماز میں برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تاکہ بندے کی عبادت میں خلل آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ سوال کون سی چیز مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ جواب انسان کے نیک مال، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد مرنے کے بعد بھی اس کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ سوال قیامت کے دن عورتوں سے نماز کے بعد کس چیز کا حساب ہوگا؟ جواب عورتوں سے شوہر کے حقوق، پردے اور زبان کے استعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے حق کے بارے میں جواب دہ ہوگی۔ سوال کون سی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب فجر کی نماز باجماعت اور اس کے بعد اشراق تک ذکر میں بیٹھنے پر حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھے اور بیٹھا ذکر کرتا رہے اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔
सवाल है, शोहर के साथ अच्छा सलूक करने वाली औरत को कितने शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब है, ऐसी औरत को 70 शहीदों का सवाब दिया जाता है। जो औरत शोहर के हक अदा करे उसको 70 शहीदों का अजर दिया जाता है। सवाल है, किस बेजान चीज ने बैतुल्लाह का तवाफ किया? जवाब है, हिजर अस्वद यानी सियाह पत्थर ने बैतुल्लाह का तवाफ किया। उसे जन्नत से लाया गया। हिजर अस्वद जन्नत का पत्थर है और कयामत के दिन गवाही देगा। सवाल है, कुर्बानी के जानवर में किसका हिस्सा डालने से कुर्बानी कबूल नहीं होती? जवाब है, गैर मुस्लिम या नापाक अकीदा वाले का हिस्सा डालने से कुर्बानी बातिल हो जाती है। अल्लाह सिर्फ मुत्तकियों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। सूरह मुआइदा आयत नंबर 27। सवाल है, अल्लाह ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया? जवाब है, हदीस के मुताबिक अल्लाह ने हफ्ता यानी सैटरडे के दिन बुराइयां पैदा की। अल्लाह ने हफ्ते के दिन बुराई पैदा की। सवाल है, कौन से अमल से शैतान को गुस्सा आता है? जवाब है, सजदा करने से शैतान को शदीद गुस्सा आता है। जब इंसान सजदा करता है तो शैतान रोता है और कहता है, हाय अफसोस। सवाल है, नमाज जुम्मा पढ़ने की फजीलत क्या है? जवाब है, जुम्मे के दिन की नमाज हफ्ते भर के गुनाहों का कफारा है। जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे फिर नमाज पढ़े उसके गुज़श्ता जुम्मे तक के गुनाह माफ हो जाते हैं। सवाल है, औरत की ठोड़ी पर बाल आना किस चीज की अलामत है? जवाब है, औरत की ठोड़ी पर बाल आना तिबी मसला हो सकता है, जैसे हार्मोनी तब्दीलियां। इस्लामी तालीमात में इसका कोई खास जिक्र नहीं। इलाज के लिए तिबी मशवरा लेना मुनासिब है। इस्लामी फिक़ह में इसका कोई खास जिक्र नहीं। सवाल है, नमाज या कुरान पढ़ते हुए नींद आना किस बात की अलामत है? जवाब है, नमाज या कुरान पढ़ते हुए नींद आना जिस्मानी थकन या शैतान की तरफ से वसवसा हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज में ऊँघे लगे तो सो जाए, यहाँ तक कि उसे मालूम हो कि वो क्या पढ़ रहा है। सवाल है, जिस्म पर कौन से तिल फायदे और नुकसान की अलामत है? जवाब है, इस्लामी तालीमात में जिस्म पर तिल के बारे में कोई खास फायदा या नुकसान का जिक्र नहीं। ये तिबी नुक्ता नजर से देखा जाता है। इस्लामी फिक़ह में इसका कोई खास जिक्र नहीं। सवाल है, औरत अगर चूड़ियां ना पहने तो क्या नुकसान होता है? जवाब है, औरत के लिए चूड़ियां पहनना जायज है और अगर शोहर हुक्म दे तो उसकी तामील जरूरी है। ना पहनने पर शोहर की नाफरमानी का गुनाह हो सकता है। सवाल है, बासी रोटी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? जवाब है, बासी रोटी खाने से मैदे की बीमारियों में अफाका होता है। ये एक मुजरिब इलाज है, ताहम इस्लामी तालीमात में इसका खास जिक्र नहीं। अवामी तजुर्बात पर मुबनी मालूमात। सवाल है, बिल्ली के रोने से किसकी मौत की खबर मिलती है? जवाब है, इस्लाम में बिल्ली के रोने को नहुसत या मौत की अलामत नहीं समझा जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी लेना कुछ नहीं। सवाल है, सोते हुए मुंह से राल का निकलना किस बात की अलामत है? जवाब है, सोते हुए मुंह से राल निकलना तिबी मसला हो सकता है, जैसे नींद की गिराही या थकन। इस्लामी तालीमात में इसका कोई खास जिक्र नहीं। इस्लामी फिक़ह में इसका कोई खास जिक्र नहीं है। सवाल है, बिस्तर पर खाना खाने से कौन सी मुसीबत आती है? जवाब है, बिस्तर पर खाना खाना जायज है, लेकिन जमीन पर बैठकर खाना सुन्नत है। बिस्तर पर खाने से कोई खास मुसीबत का जिक्र नहीं। सवाल है, नींद में अचानक झटका लगना किस बात की अलामत है? जवाब है, नींद में झटका लगना तिबी नुक्ता नजर से नींद की बेतरतीबी या थकन की अलामत हो सकता है। इस्लामी तालीमात में इसका कोई खास जिक्र नहीं। तिबी तहकीक पर मुबनी मालूमात। सवाल है, जिसको भी ये 4 ख्वाब नजर आ जाएं, उसकी दुआ कबूल हो गई।
जवाब ख्वाब में दुआ करना, सजदा करना, कुरान पढ़ना या नमाज पढ़ना दुआ की कबूलियत की अलामत हो सकती है। इब्न सीरीन के मुताबिक ख्वाब में सजदा खास तौर पर दुआ की कबूलियत की अलामत है। सवाल सर के बाल सफेद होना किस बात की अलामत है? जवाब सर के बाल सफेद होना उम्र रसीदगी की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद बाल मुसलमान के लिए नूर हैं। सवाल है, रात को बार बार आंख खुलना किस चीज की अलामत है? जवाब है, रात को बार बार आंख खुलना तिबी मसला हो सकता है, जैसे बेख्वाबी या जहनी दबाव। इस्लामी तालीमात में इसका कोई खास जिक्र नहीं, तिबी तहकीक पर मुबनी मालूमात। सवाल है, हाथ और पाँव की रगें नजर आना किस बात की अलामत है? जवाब है, हाथ और पाँव की रगें नजर आना जिस्मानी साख्त या कमजोरी की अलामत हो सकता है। इस्लामी तालीमात में इसका कोई खास जिक्र नहीं, इस्लामी फिक़ह में इसका कोई खास जिक्र नहीं है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।